Good evening, students. In the last session, we were discussing about the reasoning questions which come in your examination, the short passages which are based on reasoning. So most of these questions would ask you to either strengthen an argument or weaken an argument, or maybe to find assumptions in the argument. So in the last session, we were doing the exercise of finding assumptions in the argument. So let's quickly recapitulate the things we did in the last session, and then we'll move to the questions. Just a moment. So basically, we learned about the concept of identifying premises in the argument. I told you that premises, when they are combined with the assumptions, they lead to conclusion. So assumption is something which is not stated in your argument, right? Facts आपको दिए रहते हैं, numbers आपको दिए रहते हैं, but assumptions are not stated. These are unstated information which is not there, which is not present, but can be logically concluded, right? An assumption will always strengthen the conclusion. So I gave you a particular example, which I'll repeat again, just a moment. Something like this, we created a mini version of that argument, which are coming in the examination, right? So the conclusion of this argument says that Mr. Joy will fail his grad examination. He has attended only 42 lectures out of 50 that are delivered by his university. So conclusion part we have already identified. This is the conclusion part. I'm highlighting that by green. He has attended only 42 lectures out of 50. This part of information can be considered as a premise, which I'll highlight as orange. So the orange part is premise and the green part is the conclusion. Now assumption is a missing link which is going to connect these two thoughts. Okay, जो facts को conclusion से जोड़ेगी. And in the last session we identified few of the assumptions. The primary assumption in this argument is so the primary assumption within this argument is, in order to pass the examination, the students have to attend a certain number of lectures. For this particular case, in this university, if student has to pass the examination, they have to attend certain number of lectures. This will be the primary assumption. And there are some assumptions which are far assumptions. Less connected assumptions होते हैं या far fetched assumptions हम कहते हैं. Those assumptions could be जो गलत होते हैं basically. ठीक है कि a student has to attend at least, this is at least 49 lectures to pass his examination. This is again the assumption which students might take, but this is a wrong assumption. It's a far assumption. We cannot be certain about the quantity of lectures because no information is given to us in this regard, right? So to interpret this information out of this particular statement, it's very difficult. कि कितने lectures required हैं. We can obviously see that lecture has a correlation with passing the examination. That is very certain, right? So we also identified one of the techniques which you can use in the examination, especially when the cases are A leading to B arguments. A leading to B, in which, something is happening. So जो ये A leading to B arguments होते हैं, जिसमें A becomes the cause, these are causal arguments, and B becomes the effect of that. इसमें जब भी आपसे assumption पूछा जाए, इसकी strategy बहुत simple है. The strategy is that
तरह के आर्ग्यूमेंट में जो assumption क्रिएट हो सकता है that is could have led to so these two assumptions you can safely take whenever the questions are about A leading to B. जब भी causal questions होंगे उस पे आप हमेशा ये assumptions pick कर सकते हैं. ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं. Some recent survey is saying that students who tend to study in night hours can improve their GRE scores by 25%. Based on this data, right? We have created a small argument in which a data has been published. Now this particular part becomes kind of premise, and the second part becomes the conclusion of it. So the premise part is saying that students who tend to study night hours can improve their GRE scores by 25%. Some survey was conducted, and this is the outcome of that survey. Based on this data, a preparation company is suggesting students to attend their यानी prep companies के night lectures जो है उनको अटेंड करने का सजेशन दे दिया that if you attend our lectures at night you will be benefited in your preparation, right? So based on this we can clearly see that A is to B का कनेक्शन क्रिएट कर दिया गया है, right? A is to B का कनेक्शन क्या क्रिएट किया गया है यहाँ पे, that studying in night has been स्टडिंग इन नाइट को कोरिलेट कर दिया है उन्होंने बेटर एग्जाम परफॉर्मेंस NGRE. So whenever the author is trying to make these kind of arguments or these kind of questions are coming in the examination where two things are being correlated and one is being given as the cause and the other is the effect of that, in that case you can conveniently take these two kinds of assumptions. What assumption? That C जैसी कोई चीज नहीं है जो B तक पहुंच पा रही होगी. That means studying in night is the only or major factor impacting the student performance. Right? This assumption I can easily take from the argument which has been created that studying in the night is the only or major factor impacting the student performance, right? NGRE, and there is nothing else. There is nothing else which could have contributed to better performance. ठीक है, तो इस तरह के assumptions हैं जो हम पहले से ही चूज कर सकते हैं. ये जो assumption में मैंने आपको फर्स्ट बताया कि there is nothing as C factor which could have led to B outcome, right? तो हमने वही आइडेंटिफाई कर लिया है कि स्टडिंग इन नाइट ही एक मेजर फैक्टर है जिससे स्टूडेंट का परफॉर्मेंस अच्छा किया जा सकता है इस आर्ग्यूमेंट के आधार पे, एंड देयर इज नथिंग एल्स व्हिच कुड हैव कंट्रीब्यूटेड टू बेटर परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन GRE एग्जामिनेशन. सो ये एक assumption ले सकते हैं. दूसरा, रिवर्स वाले पिक्चर भी कई जगह पे ट्रू हो सकती है, तो उसको भी हम डिनाई कर देते हैं पहले ही आउटराइटली. रिवर्स पिक्चर क्या हो सकता है कि जस्ट बिकॉज दो चीजें कोएग्जिस्ट करती हैं इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ए के कारण बी आपको लग रहा हो. रिवर्स भी ट्रू हो सकता है कि बी के कारण ये हो. फॉर एग्जाम्पल,
So this is again a small argument in which a health magazine has published a study which claims that employees who attend offices with in-house gym facilities tend to be more healthy and fit. And based on this, they are recommending all their readers to join companies where in-house gym facilities there. कि आप उन्हीं organizations को join करें जहाँ पे in-house gym facility if you would like to be healthy and fit. So in this, again, they are creating that correlation of A to B, in which what they are assuming is that gym and office leads to employees being fit. Right? This is the correlation they are creating. अब ये जो picture है ये reverse भी तो हो सकता है ना. Reverse क्या हो सकता है? The employees who are actually fit and healthy, they usually join the companies and organizations where gym facilities are there. If that kind of data comes out, then this study is flawed. The reasoning is flawed क्योंकि इन्होंने दो चीजों को बस कोएग्जिस्ट करते देख लिया है कि जो फिट होते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में जिम भी होता है, तो इन्होंने क्या कोरिलेट कर दिया है कि जिम एंड ऑफिस होने के कारण ये लोग फिट हैं. ठीक है. सो मे बी दे आर मिसिंग आउट ऑन दिस थिंग that employees who are already fit, they tend to join the companies where gym facilities are there. If that is the case, then this argument is false. But the assumptions जो हमारे होते हैं, assumptions का काम क्या होता है? To support the argument. They are basically the missing link जो एक premise या data को conclusion से जोड़ते हैं to support the argument or support the conclusion. So obviously जिसने ये बात लिखी है कि जिम फैसिलिटी के होने से वो फिट है, वो ये नहीं मानेगा, तो ऐसे आर्ग्यूमेंट में एक कन्वीनियंटली मैं ले सकता हूँ डेटा या सॉरी assumption which is this kind of assumption I can easily take, right? I'm sorry, that is fit. So these employees were not already fit or healthy. This assumption I can easily take, right? Because if they are already fit and healthy, then ये reasoning गलत हो सकती है, क्योंकि इनका कहना है कि gym in the office is that stimulant which is encouraging or pushing people to become fit, right? और अगर वो already fit हैं तो वो बात ही गलत हो जाती है. So these employees were not already fit or healthy. This is one of the prime assumption I can take from this argument. And this picture is not other way around. Other way around यानी जो employees fit और healthy होते हैं वही ऐसे ऑफिसेज ज्वाइन करते हैं जहाँ जिम है, ये बात भी नहीं हो सकती है पॉसिबल, राइट? एंड देयर कुड नॉट बी अ सी फैक्टर व्हिच इज कंट्रीब्यूटिंग टू दिस. कोई और एक्सटर्नल फैक्टर नहीं. ऑब्वियसली बीइंग फिट इज नॉट ओनली अबाउट जिम फैसिलिटी, इट्स आल्सो अबाउट योर हैबिट्स, लाइफस्टाइल, eating habits, nutrition, right? Many things can contribute to that. So we are not taking that into consideration. So the person who has written the argument would like to believe that it's because of gym facility these employees are becoming fit. It's not because of the other factors. C factors के कारण नहीं है. C यानी थर्ड फैक्टर्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण नहीं है. सिर्फ यही एक रीजन है जिस कारण से ये लोग फिट होते जा रहे हैं. ठीक है. और यही जब किसी आर्ग्यूमेंट को या पैसेज को आपको वीकन करने को आए, सो यू हैव टू अटैक ऑन दी assumptions ओनली. आप इसी assumptions को अगर अटैक कर देंगे तो दिस आर्ग्यूमेंट कैन बी वीकन. इफ आई से दैट the employees are already fit or healthy, if this comes out, this can actually weaken my assumption. So we also learned about the negation strategy in the last class. The negation strategy is basically that if you're not able to find the right option, especially जब causal के questions बने होते हैं, उस पर ये strategy बहुत काम करती है कि अगर आप डायरेक्टली अपने सही आंसर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, सो एक इनडायरेक्ट मेथड है जिसमें आप क्या करेंगे, assumptions का अपोजिट क्रिएट कर देंगे. जैसे these employees were not already fit and healthy, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? I'll remove the term not. अब assumptions जो होते हैं वो तो सपोर्ट करते हैं कंक्लूजन को, तो assumptions का अपोजिट क्या करना चाहिए? कंक्लूजन को अटैक करना चाहिए या वीकन करना चाहिए. So I'll just try to read by removing word no. Is it weakening my conclusion? Is it weakening my argument? So these employees were already fit or healthy. If this information is coming out, it is definitely going to damage my argument. इसकी रीजनिंग को वीकन करता है. So in this case, this could be the right answer. So आप ये negation strategy भी use कर सकते हैं, especially अगर आप directly options पे नहीं आ पा रहे हैं. So this is a reverse approach which you can use, in which you will try to modify, you will try to create the opposite of your options, and then you'll see which of them is weakening your argument, right?
So now let's come to the question answer part. अगर अभी तक कोई चीज हो जो आप लोगों को नहीं समझ आई है, you guys can ask me anything which you were not able to understand. आ जाए हम क्वेश्चंस पे. तो लास्ट क्लास हम assumption आइडेंटिफाई करने की एक्सरसाइज कर रहे थे. We'll continue with that exercise today also. Just a moment. फोर्टीन क्वेश्चन देखिए आप लोग. ठीक है, 14 में आप यही स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं. डायरेक्ट अगर आप ऑप्शंस आइडेंटिफाई कर पाए तो वो भी चलेगा. जस्ट अ मोमेंट. Swapnil says it could be C. What about others? Vipul, just a moment. So most of you are suggesting C. Vipul, Adi, Abhishek, Divyam, Harshvardhan, Jasmine. Ritika says molds can grow in dry areas. Kunal, Shresht, Ayushi, Anuraj, Priya. So everybody is coming to option C, right? Which is mold cannot grow in dry areas. So let's try to understand what exactly they are saying. Every year, many people become ill because of airborne mold spores in their homes. After someone becomes ill, specialists are often hired to eradicate the mold. These specialists look in damp areas of the house since mold is almost always found in place where there is substantial moisture. If one wishes to avoid mold poisoning, then one should make sure to keep all internal plumbing in good condition and prevent leakage that could serve एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मोल्ड. सो इनका कहना है कि जहां जहां डैम्प या मॉइस्चर होता है हाउस में, वहां पे मोल्ड आ सकते हैं. सो इसको भी हम कॉजल रिलेशनशिप में स्टैब्लिश कर सकते हैं. इन द चैट बॉक्स आई एम ट्राइंग टू डू सेम थिंग. सो डैम्प एरियाज या सिंपली राइट मॉइस्चर. जहां मॉइस्चर है वहां पे मोल्ड आ सकता है. Causes moisture, the impact or effect of that is mold. This is a causal relationship question, right? Simply I can see there is a correlation between these two things. So according to this argument, I have to find the assumption. As I said, the assumptions are never stated in the argument.
I have to find something which can correlate this fact strongly, जो इस बात को और establish कर दे, ठीक है. Like C जो कह रहा है कि mold cannot grow in dry areas, ये मेरा सही ऑप्शन हो सकता है क्या? आप लोगों ने मोस्ट ऑफ देम सी का है. मोल्ड कैन नॉट ग्रो इन ड्राई एरियाज, ऐसा हमारे आर्ग्यूमेंट में. चलो अपन अपनी रिवर्स स्ट्रेटजी लगा लेते हैं जो नेगेशन की टेक्निक है. तो नेगेशन की टेक्निक में हमने क्या सीखा है कि हम अपने ऑप्शन का एक रिवर्स ऑप्शन बना देंगे, अपोजिट ऑप्शन क्रिएट करेंगे, राइट. लेट मी क्रिएट द अपोजिट ऑप्शन ऑफ दिस, दैट मोल्ड्स कैन ग्रो इन ड्राई एरियाज. अब ये बात मेरे आर्ग्यूमेंट को कैसे वीकेंड करती है, उसके कंक्लूजन को ये बता दीजिए. मोल्ड्स कैन ग्रो इन ड्राई एरियाज, उसमें हमने कैन नॉट वाली बात हटा दी है. वी आर अज्यूमिंग, वी आर सेइंग दैट मोल्ड्स कैन ग्रो इन ड्राई एरियाज. लेट्स सी इफ इट इज वीकनिंग द रीजनिंग ऑफ आवर आर्ग्यूमेंट. कहीं पे भी उसकी रीजनिंग वीकन हो रही है क्या? देखो उन्होंने क्या बोला हुआ है. एवरी ईयर मेनी पीपल बिकम इल बिकॉज ऑफ एयरबॉर्न एंड मोल्ड स्पोर्स इन देयर होम्स. एयरबॉर्न mold spores. After someone becomes ill, specialists are often hired to eradicate the mold. These specialists look in damp areas of the house since mold is almost always found. Almost always का मतलब क्या है? हमेशा कि ज्यादातर. When we read the word almost always, not always, right Abhishek? So mostly, majority, right? सही बोल रहे हैं आप लोग कि जो टर्म यूज करिए, अगर इसको मैं ऑलमोस्ट हटा दूं तो भी शायद आप लोगों की बात सही हो सकती है. लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि ऑलमोस्ट ऑलवेज फाउंड इन प्लेसेस वेयर देयर इज मॉइस्चर. सो देयर कुड बी फ्यू प्लेसेस वेयर मॉइस्चर इज नॉट देयर, वेयर ड्राई एरिया इज देयर एंड स्टिल मोल्ड इज ग्रोइंग देयर. ठीक है, ये बात को हम मान सकते हैं ना, क्योंकि इन्होंने जो लैंग्वेज यूज करी है उसके हिसाब से दिस कुड बी ट्रू, दैट देयर कुड बी सिचुएशंस वेयर मोल्ड इज ग्रोइंग इन ड्राई एरियाज. बिकॉज ऑलमोस्ट ऑलवेज तो मॉइस्चर पे होता है, बट फ्यू केसेस में इट कैन ग्रो इन ड्राई एरियाज. सो इसका जो रिवर्स है, इट इज नॉट वीकनिंग माय आर्गुमेंट, बिकॉज दे themselves have, the person who has written the argument has already acknowledged this aspect that molds majority of time are growing in areas which are damp या moisture है. So there is a possibility they can grow in dry areas. जब उन्होंने खुद ये चीज बोली हुई है तो ये उसको डैमेज नहीं कर सकता है, राइट. सो गोइंग बाय द अप्रोच व्हिच आई हैव टॉट यू, दैट ए से बी को जब आप कोरिलेट कर रहे हैं, कॉजल हो रहा है, तो उस केस में दो ही assumptions आपके निकल सकते हैं. एक तो सी जैसी कोई चीज नहीं है, राइट. देयर इज नो सी which could contribute to B. सेकेंड मैंने आपको बताया कि ये रिलेशनशिप रिवर्स नहीं है. B is not happening because of A. कोई दिख रहा है इस पे ऑप्शन? इन दोनों assumptions पे कोई ऑप्शन फिट हो रहा है आप लोगों का? Mihir says A, Aparna says B हो रहा है. Suvik says B. देखो A आ रहा है ना इस चीज पे. Mihir is saying, Mihir is suggesting the correct answer. Ayushi, mold itself cannot create moisture can be the answer, right Ayushi? Because he is saying mold needs a breeding ground. बिल्कुल सही कह रहे हो आयुषी कि हमें A ऑप्शन को अपना assumption लेना चाहिए, क्योंकि रिवर्स वाली बात ट्रू नहीं है. ये भी एक assumption हम लेके चलते हैं, राइट, कि ऑलरेडी जो लोग फिट थे वो लोग इस तरीके का जिम फैसिलिटी यूज करते हैं. जस्ट अ मोमेंट. Yeah, sorry for the interruption. So ए वाली जो बात है वो आपको यही बता रहे हैं ना कि बी के कारण ए नहीं हो रहा है, कि जो मॉइस्चर है, आप अगर अपनी कॉजल रिलेशनशिप देखेंगे, जो चैट ऑप्शन है अपना, उसमें स्क्रॉल अप करिए, तो हमने वहां देखा था कि ए के कारण बी हो रहा है. सो ए वाज दैट मॉइस्चर के कारण मोल्ड हो रहा है, ऐसा ये ऑथर बोल रहा है. तो ये ऑथर कभी भी ये बात नहीं मानना चाहेगा कि मोल्ड के कारण मॉइस्चर क्रिएट हो सकता है, बी के कारण ए हो सकता है. ये चीज वो हमेशा डिनाई करेगा, राइट. सो कॉजल में ये बात हमेशा फैक्ट रहती है कि बी के कारण ए नहीं होता है.
और सी जैसी कोई चीज नहीं है जो बी को लीड कर सकती है या बी के आउटकम पे जा सकती है. सो मोल्ड इटसेल्फ डज नॉट क्रिएट मॉइस्चर इज करेक्ट आंसर. ठीक है, आपको किसी और ऑप्शन पे कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं. लाइक सम ऑफ यू सजेस्टेड ऑप्शन बी. अगेन ट्राई टू क्रिएट the opposite version of that option to see it is weakening your conclusion or not. जैसे mold itself can create moisture. If that is true, तो आपकी रीजनिंग फॉल्स भी हो सकती है, राइट. लेकिन अगर मैं बी का रिवर्स बनाऊं, विच इज मोस्ट होम ओनर्स नो इनफ अबाउट प्लम्बिंग टू डिटरमिन वेदर theirs is in good condition or not. So most homeowners do not know enough about plumbing to determine कि उनका जो प्लम्बिंग है वो सही है कि नहीं. इससे हमारी रीजनिंग क्यों वीक हो सकती है. ये तो स्पेशलिस्ट देखने वाला है ना. डैम्प एरियाज इन द हाउस कहाँ पर है. उन्होंने क्या सजेशन दिया है. वन विशेस टू अवॉइड मोल्ड पॉइजनिंग then one should make sure to keep all internal plumbing in good condition. जिसके लिए आप भले एक्सपर्ट नहीं है, but you can look for a specialist. You can look for somebody who can come and can check your internal plumbing, right, to prevent leakage that could serve as a breeding ground for mold. So nowhere it is saying that homeowners have to be that specialist who are aware about those plumbing conditions, right? They can hire a specialist always. Kunal says doubt for B, says to maintain the plumbing. समझा नहीं मैं कुणाल, आपका डाउट नहीं समझ पा रहा हूँ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग. क्वेश्चन 16 देख लीजिए आप लोग. Right. So the conclusion within 16 question is clearly stating that people who smoke have anxiety disorders. Anxiety and nervous ज़्यादा feel करते हैं compared to non-smokers. This is again a causal question in which they are trying to correlate two things, which is A becomes your smoking, and the effect of that is being nervous and anxiety issues. Problems compared to smokers. Right? Smoking जो लोग कर रहे हैं, that is the cause. The effect is they feel more nervous and anxiety ज़्यादा रहती है, anxious होते हैं compared to non-smokers. So this is again a causal question in which those two things can very well go, which we have discussed. Either assumption आपका हो सकता है कि C जैसी कोई चीज नहीं है जो nervous और anxiety create कर सकती है, or this relationship is not reverse. ठीक है, क्या ऑप्शन लग रहा है यहाँ पे आपको? Swapnil says B. All of you are suggesting B. सब लोग B पे ही आ रहे हैं. B says anxiety and nervousness do not make individuals more likely to start smoking, right? So if this particular fact comes out that people who are smoking, वो उन्होंने स्मोक करना इसलिए चालू करी क्योंकि वो एंजाइटी और नर्वस थे, यानी एंग्शियस रहते थे या नर्वस फील करते थे. तो ये अगर हमें पता चल गया तो ये आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा? वीकेंड हो जाएगा. इफ एंजाइटी एंड नर्वसनेस इज लीडिंग टू smoking, then your equation is going to be reversed. Now A part has become anxiousness and nervousness, and the B aspect of that is people have started smoking. So this is A leading to B leading to A create ho raha hai, right? So that means if I try to see this particular option, it can actually the opposite of this option can actually weaken my argument, right?
एंजाइटी एंड नर्वसनेस में मैं अगर डू नॉट हटा दूं और मैं देखूं अपनी वो रिवर्स वाली स्ट्रैटेजी या निगेशन स्ट्रैटेजी से, कैन इट वीकन माय आर्गुमेंट? सो आई कैन वेरी वेल सी दैट इट इज वीकनिंग माय आर्गुमेंट. एंजाइटी एंड नर्वसनेस make individuals more likely to start smoking. If this comes out, then my argument is getting contradicted, right? Weaken हो रहा है. So B is correct answer. कितने लोगों को अभी भी ये मेथड समझने में प्रॉब्लम हो रहा है? बहुत सिंपल सी चीज है. जो हमने इक्वेशन समझी है उसको वापस से मैं आपको रिट्रेट कर देता हूँ. पल्लव क्या एग्जैक्टली आता है प्रॉब्लम, मुझे बताओ थोड़ा. देखो ये इक्वेशन हमने सीखी है कि प्रीमिस प्लस अजम्पशन होते हैं कंक्लूजन, राइट? दैट मीन्स प्रीमिस तो हमें दिए ही होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं कि जैसे ये स्मोकिंग इज अ नोन कॉज ऑफ सर्टेन सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स इज अ फैक्ट व्हिच इज गिवन, राइट, बाय द पर्सन हु हैज रिटन द आर्गुमेंट. Additional concern can be added to the list of maladies. This. A recent study surveyed both smokers and non-smokers and found that smokers are significantly more anxious and nervous than non-smokers. So this is kind of conclusion as well as fact which is given, right? कि जो smokers हैं उनमें anxiety और nervousness की problem ज़्यादा होती है. So premises plus assumption leads to conclusion. अब यहाँ premises ये सब है, ठीक है, और उसका कंक्लूजन कहता है कि अगर आप स्मोक करोगे तो आप में एंजाइटी और नर्वसनेस बढ़ेगी, राइट? इनको एक मिसिंग लिंक जोड़ती है जिसको हम अजम्पशन कहते हैं, जो लिखा नहीं होता है. तो मैंने जो आपको पहले भी बताया कि अजम्पशन के होने से कंक्लूजन को स्ट्रेंथ मिलता है, कंक्लूजन स्ट्रांग होता है, प्रीमिसेस और कंक्लूजन ज्यादा स्ट्रांगली कोरिलेट हो जाते हैं, ठीक है. तो अगर सोचो कि अजम्पशन का अपोजिट क्रिएट हो जाए तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा? वीकेंड पड़ जाएगा, क्योंकि अजम्पशन के होने से कंक्लूजन को स्ट्रेंथ मिलती है. तो अजम्पशंस के रिमूव कर देने से, अजम्पशन का अपोजिट ऑप्शन क्रिएट कर देने से कंक्लूजन क्या हो जाएगा? वीकेंड हो जाएगा. दैट मीन्स अगर मैं P, इसको मैथमेटिकली समझ लो, P माइनस A करूं तो मेरा कंक्लूजन क्या होना चाहिए? इट विल कम डाउन. कंक्लूजन का जो वेट है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि P प्लस A से कंक्लूजन स्ट्रांग होता है. तो P माइनस A से कंक्लूजन क्या हो जाएगा? वीकेंड हो जाएगा. तो हमने वही स्ट्रेटेजी यहाँ पे पल्लव करी कि हमने अजम्पशन का अपोजिट बना दिया, उसको पॉजिटिव से नेगेटिव बना दिया हमने, ठीक है. कि जो भी उसमें लैंग्वेज यूज करी थी, नॉट, डू नॉट, उसको रिमूव करके हमने देखा. या अगर यहाँ पे डू नॉट नहीं लिखा होता तो हम उसको डू नॉट को ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है. जैसे ए ऑप्शन था कि एंजाइटी एंड नर्वसनेस, इसका मैं अपोजिट क्रिएट करना चाहूँ, सो इट विल बी like anxiety and nervousness cannot lead to serious health problems. And then I'll try to see if it's weakening my conclusion, is it attacking my conclusion. So वो नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरा जो कंक्लूजन है वो इस चीज पर रिलाई करता है कि स्मोकिंग के कारण एंजाइटी और नर्वसनेस आ रही है इन लोगों में, राइट. और इसी का अगर मैं बी ऑप्शन का अपोजिट क्रिएट कर देता हूँ बाय रिमूविंग वर्ड डू नॉट, सो इट बिकम्स एंजाइटी एंड नर्वसनेस मेक इंडिविजुअल्स मोर लाइकली टू स्टार्ट स्मोकिंग. If that is the case, then my argument is getting weakened. ठीक है, जिसको मैं इफेक्ट समझ रहा हूँ वही कॉज है, ये गलती हो जाएगी, ठीक है. इसलिए ये सही आंसर है, क्योंकि इसका अपोजिट इज अटैकिंग माय कंक्लूजन. दैट मींस इट्स अ करेक्ट आंसर. क्लियर है पल्लव? कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं. आयुषी सेज आई एम फीलिंग लाइक ही इज सेइंग स्मोकिंग लीड्स टू नर्वसनेस. स्मोकिंग इज, हाँ सही कह रहे हो आयुषी, यही हमने बनाया, एंग्शियस और नर्वस, मोर एंग्शियस एंड मोर नर्वस, यही उनका कंक्लूजन है. तो आप सही कह रहे हो कि स्मोकिंग को नर्वसनेस से कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा है. Disha says doubt with the option C, which is equivalent number of smokers and non-smokers were surveyed for the study. Maybe equivalent numbers nahi kiye hain Disha. Let's create the opposite of this to see how it will damage my argument. Let's say that only equivalent number of smokers and non-smokers were not surveyed for the study, right? 30 smokers were compared to 20 non-smokers. How does it weaken my argument? And found that smokers are significantly more anxious and nervous than non-smokers. इसको इस तरीके से भी दिशा देखा जा सकता है कि अगर 30 में से 20 लोग, जो फर्स्ट वाला ग्रुप है अपना, उसमें 20 लोगों को एंजाइटी इश्यूज हैं, ठीक है, तो कितना परसेंट हो गया? 20 by 30 into 100%, ठीक है.
20/30 into 100 आप करके देखोगे, उससे आपको समझ आ जाएगा कि स्मोकर्स में एंजाइटी के इश्यूज कितने हो रहे हैं, राइट। सिमिलरली मैं 5/20 करूँ कि 5 लोग हैं नॉन स्मोकर्स में, इट्स अ फार assumption, इट विल नॉट डू एनीथिंग। मैं आपको वही एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ दिव्या, कि लेट्स टेक अ केस वेयर ओनली 30 स्मोकर्स वर कंपेयर टू 20 नॉन स्मोकर्स। अब ये 30 स्मोकर्स में से 20 में नर्वसनेस और एंजाइटी की प्रॉब्लम्स दिखी है, वही चीज नॉन स्मोकर्स में 5/20 है। सो इवन विद द परसेंटेज थिंग यू कैन सी दैट किसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी आई है, स्मोकर्स में कि नॉन स्मोकर्स में। तो इस ये फैक्ट अगर निकल भी आता है कि इक्वल नंबर लोगों को स्टडी नहीं किया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अगर हम लोग इसको परसेंटेज के टर्म्स में देख रहे हैं तो 20/30 इज व्हाट परसेंट? 20/30 इज रफली कितना परसेंट हो जाता है? 67, राइट। 66.6 या 67% राउंड ऑफ करोगे। वही चीज 5/20 कितना हो जाता है? 25% होता है। तो प्योरली अगर हम परसेंटेज में देखें तो भी हमें दिख रहा है कि भले इक्वल नंबर ऑफ स्मोकर्स नहीं स्टडी किए हो विद नॉन स्मोकर्स, स्टिल उसमें से कितने लोगों में एंजाइटी है उसका भी परसेंटेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है दिशा, दैट्स व्हाई दैट इज नॉट वीकनिंग इट। और क्वेश्चंस देख लेते हैं। नाइनटीन्थ इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको आप देखिए एंड ट्राई टू पुट सेम स्ट्रेटजीज। So Swapnil is suggesting it could be C. Let's understand the conclusion of this argument. देखो, आपको assumption आइडेंटिफाई करने के लिए जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो होना चाहिए कि आपको पहले कंक्लूजन को आइडेंटिफाई करना है। जब तक आप कंक्लूजन नहीं ढूंढ पाते हैं तब तक आप assumptions को नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। So recent articles stated that only 5.5 of American colleges grant the majority of degrees in the liberal arts. Citing this, a reader wrote to Lemon that this was further evidence of the decline of academic rigor in American post-high school education, right? So based on this study, somebody is concluding, a reader is concluding that academic rigor in American post-high school education has declined. This is the evidence of that, right? So he is citing this study as the evidence कि सिर्फ 5.5 अमेरिकन कॉलेजेस ही है जो लिबरल आर्ट्स में डिग्री देना चाह रहे हैं, और इस कारण से उसका कहना है कि ये देखते हुए मुझे लग रहा है कि अमेरिका में एकेडमिक रिगर जो है वो रिड्यूस हो चुकी है। Let's try to see which option can be considered as assumption. As I said, the whatever option you guys are choosing, try to create opposite of it if you're not able to pick it up directly. आप उसका opposite create करिए to see which of them is attacking your conclusion. So here I can see most of you are suggesting D and few students have also suggested C. So let's discuss C and D options. और इसके अलावा किसी का कोई confusion आप वो भी पूछ सकते हैं।
So C says most post-secondary scientific engineering and vocational training does not involve as much academic rigor as liberal arts training. I'll put that on hold and I'll try to read D as well. Academic rigor is the most important aspect of post-high school education. Let's create the opposite of this. Academic rigor is not the most important aspect of post-high school education. Now you guys help me understand how this is weakening the conclusion. The conclusion says that कि liberal arts क्योंकि कम कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है या मेजॉरिटी सॉरी एज अ मेजॉरिटी ऑफ देयर डिग्रीज आर नॉट इन लिबरल आर्ट्स, इसका मतलब है कि अमेरिका के स्कूल्स में एकेडमिक रिगर कम हो गई है. एकेडमिक रिगर यानी पढ़ाई जो होती है वो पढ़ाई कम हो गई है, उसके आर्ट्स उसमें जो डिमांड करते हैं चीजें वो कम हो गई है, ये कह रहे हैं वो. इस बात को डी कैसे झुटलाता है? अपोजिट ऑफ डी, द अपोजिट ऑफ एनी ऑप्शन शुड वीकन द कंक्लूजन दैट academic rigor is not the most important aspect. I'm creating the opposite of high school education. How this is weakening my statement? उन्होंने कहीं ऐसा डिस्क्लेमर या ऐसा कोई क्लेम मारा है क्या कि एकेडमिक रिगर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होना चाहिए एक हाई स्कूल एजुकेशन का? कहीं पे भी नहीं लिखा है, वो ऊपर से नीचे तक पढ़ लो, ठीक है. कहीं पे भी उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हाई स्कूल एजुकेशन नहीं लिखा है. सिर्फ एक रीडर का ये एनालिसिस है कि जस्ट बिकॉज सिर्फ 5.5% अमेरिकन कॉलेजेस ही लिबरल आर्ट्स में डिग्री दे रहे हैं, इसका मतलब एकेडमिक रिगर अमेरिका में डिक्लाइन पे आ गई है, राइट? इसका मतलब कहीं भी ये नहीं दिया है कि एकेडमिक रिगर ही सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हाई स्कूल एजुकेशन का. वी कैन नॉट सर्टेनली से दैट, राइट? ये उसी तरह का ऑप्शन है जैसे मैंने आपको बताया था कि 45 लेक्चर्स बोलना गलत हो जाएगा. इतनी सर्टेनिटी से बोलना जो बात लिखी नहीं है वो गलत है कि एकेडमिक रिगर ही सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. ये तो पूरे आर्ग्यूमेंट में उसने कहीं बोला ही नहीं है. तो इसका मैं अगर अपोजिट क्रिएट भी कर दूं, सो इट विल नॉट डैमेज माय आर्ग्यूमेंट, बट सी इज मेकिंग सेंस. इफ आई क्रिएट अपोजिट ऑफ सी, लेट्स सी हाउ इट विल वीकन माय कंक्लूजन. Most post-secondary scientific engineering vocational training, I'll remove the word does not. I'll read that as most of these courses, engineering vocational training, involves as much academic rigor as liberal arts training. If this thing is true, then his analysis is wrong because his analysis is only based on this fact that only 5.5 American colleges are 5.5% colleges are offering liberal arts major, right? So उसका कहना है इस कारण से academic rigor कम हो गई क्योंकि बाकी 94.6% 5% जो है वो नहीं देते हैं, ठीक है. अब वो 94.5% वाले अगर इन सब में से कुछ दे रहे हैं साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड वोकेशनल ट्रेनिंग एंड इट इज एज रिगरस एज लिबरल आर्ट्स, इन दैट केस हिज आर्ग्यूमेंट इज फ्लॉड, राइट? सो ऑब्वियसली जिसने भी आर्ग्यूमेंट फ्रेम किया है वो ये कभी नहीं मानेगा कि साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इज एज रिगरस एज लिबरल आर्ट्स ट्रेनिंग. विल नॉट टेक दिस फैक्ट, ठीक है. He'll assume that these things are not equal. क्लियर है आपको? इस ये सी जैसी बात है ना जो मैंने आपको बताई थी कि ये वैसे ही स्टेटमेंट है कि अगर इसका आप डज नॉट हटा दोगे तो ये आपका आर्ग्यूमेंट को पूरा वीकेंड कर रहा है, आपके कंक्लूजन को डैमेज कर देगा. ये कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं समझ आया हो तो यू गाइस कैन टेल. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 20 नाउ. So there is a carpal tunnel syndrome in which अगर आपको ये सिंड्रोम नहीं भी पता है तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, ठीक है. आप इसको एक बॉडी की प्रॉब्लम समझ के आगे बढ़ सकते हैं, बट इन जनरल मैं आपके अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ. दैट इज बेसिकली आपकी रिस्ट में नमनेस आ जाती है और पेन रहता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूसेज ऑफ कीबोर्ड और प्लेइंग गेम्स.
Ayushi, Prakhar, Aparna, Sway, they all are suggesting option C. ठीक है. Always watch the language of the argument, the kind of words and language they are using. With that, you always have to make sure that the opposite of the statement which you're creating, is it damaging your argument in some way. ठीक है. यहाँ पे बहुत सीधी सी बात उसने बोल दी है कि अगर वीडियो गेम्स आप खेलते हो तो वीडियो गेम्स खेलने से रिस्ट में ये पेनफुल कंडीशन होती है, दैट कार्पल टनल सिंड्रोम वुड हैपन. नाउ दे आर प्लानिंग टू ban the sale of video games to minors, and they are assuming that this would help to curb this painful risk condition among adolescents. कि बंद कर दिया अगर हमने सेल टू माइनर्स तो उनकी ये कंडीशन जो पेनफुल रिस्क कंडीशन है ये बंद हो जाएगी, राइट. अब आप में से कई लोग सजेस्ट कर रहे हैं सी ऑप्शन. लेट्स क्रिएट द अपोजिट ऑफ दैट. Playing video games is not the only way an adolescent can develop carpal tunnel syndrome. Maybe there are other methods, there are other ways because of which the adolescents can develop carpal tunnel syndrome. But are we worried about those conditions? कुछ होगा शायद बाइसाइक्लिंग करने से होती होगी या कोई और भी कारण हो सकते होंगे जिससे कार्पल टनल हो सकता है. अभी specifically they are talking in regards to adolescents who are playing video games. Our subject is those adolescents who are playing video games. इन पे स्टडी कर रहे हैं और इन पे बोला जा रहा है कि अगर इनकी सेल को बैन कर दिया जाए, प्रोहिबिट कर दिया जाए कि माइनर्स वीडियो गेम नहीं खरीद सकते, तो ये कार्पल टनल के जो पेनफुल कंडीशन है ये खत्म की जा सकती है एडोलेसेंस में. ठीक है. ये नहीं कह रहे हैं ये लोग कि सिर्फ इसी के कारण, सिर्फ प्लेइंग वीडियो गेम्स के कारण ही एडोलेसेंस में कार्पल टनल हो सकते हैं. पूरे आर्गुमेंट में कहीं नहीं लिखा है. इन्होंने सिर्फ कहा है कि जो वीडियो गेम्स खेलते हैं उनमें ये प्रॉब्लम जरूर होता है. ये प्रॉब्लम 10 और कारण से भी हो सकता है, ऐसा कहीं भी आर्ग्यूमेंट में नहीं लिखा. तो इवन इफ आई क्रिएट अपोजिट ऑफ दिस, इट इज नॉट डैमेजिंग माय आर्ग्यूमेंट. इसके बाद कुछ लोगों ने डी भी सजेस्ट किया है एंड सम स्टूडेंट्स आर सजेस्टिंग बी. सो लेट्स डिस्कस बी एंड डी आल्सो. Not all adolescents who play video games on regular basis suffer from carpal tunnel syndrome. This is kind of weakening the argument, right? Instead of supporting it, see, the straightforward way in which your option is written, that should always support your argument. This is kind of weakening your argument. देखिए मैं बोल रहा हूँ कि अपोजिट को वीकन कर देना चाहिए. अगर इसी का नॉट ऑल हटा दूं मैं तो वो इसको वीकन कर देना चाहिए. पर यहाँ पे तो जिस तरीके से वो लिखा है डायरेक्टली वो वीकेंड कर रहा है. वो कह रहा है कि सारे एडोलेसेंट्स जो वीडियो गेम खेलते हैं रेगुलर बेसिस पे उन सब में कार्पल टनल नहीं होता है, फ्यू में होता होगा या मेजोरिटी में होता होगा, इस तरीके की बात कर रहा है, राइट. लेकिन सब में नहीं होता है. तो ये तो कहीं ना कहीं इस बात को झुठलाता है कि वीडियो गेम्स और कार्पल टनल का जो एसोसिएशन है ये हर जगह नहीं पाया जाता है, राइट. द वे इट इज रिटन डायरेक्टली, हम तो अभी उसका अपोजिट क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं. डायरेक्ट जो है वो डायरेक्ट लैंग्वेज ही उसको वीकन करती जा रही है. सो दैट्स व्हाई बी इज नॉट द करेक्ट आंसर. ठीक है. टॉकिंग अबाउट most parents would refuse to purchase video games for their adolescent children. Let's come to this point and see if it is damaging my conclusion. Most parents would not refuse to purchase video games for their adolescent children. If most parents would not refuse, in that case the reasoning is getting weakened. क्योंकि इन्होंने प्रोहिबिट किया है माइनर्स को सेल करना, यानी माइनर खुद अगर शॉप पे जाता है खरीदने के लिए तो उसको शॉपकीपर नहीं बेचेगा वीडियो गेम. लेकिन माइनर अगर अपने पेरेंट्स को परसुएट करके शॉप पे भेज देता है और पेरेंट्स बाय करके ले आते हैं तो जो आपका प्लान है वो काम ही नहीं कर रहा है. योर प्लान वाज दैट इफ यू बैन द सेल ऑफ वीडियो गेम्स टू माइनर्स दीज इंसिडेंट्स विल कम डाउन, राइट. But if minors have other ways of accessing those video games through their parents or somebody else who can go on their behalf and can buy these video games, then this argument is getting weakened. अगर मैं इसका opposite create कर दूं D का कि most parents would not refuse to purchase, that means they are willing to buy video games for their adolescent children. Most parents are willing to buy video games for their adolescent children. If that thing is true, in this case my argument is getting weakened. So this could be the correct answer. ठीक है. आप में से कुछ लोग ए ऑप्शन भी सजेस्ट कर रहे हैं तो मैं पढ़ लेता हूं. द मेजॉरिटी ऑफ फेडरल लेजिस्लेटर्स would vote for bill that prohibits the sale of video game to minors. ये अभी हमारी रीजनिंग का स्कोप ही नहीं है. ये देखो ए वाली जो बात है वो किस तरीके की बात है, इसको इस तरीके से समझो कि मैं
एक फेयर कंडक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उस फेयर में मैंने आपको आपका स्टॉल लगाने के लिए इनवाइट किया है, और मैंने एक फी उसमें आपकी एग्जीबिशन या फेयर में आई एम चार्जिंग एवरीबडी 5,000 रुपीज, राइट। एंड आई एम ट्राइंग टू परसुएड यू टू पुट योर स्टॉल इन द फेयर, and you guys are asking me that if I put my stall for a 5,000 rupee, what is the kind of return I can expect? So I'm giving you data about the crowd that is going to come, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना फुटफॉल होगा ऑन एन एवरेज, वीकेंड्स पे इतने लोग आने वाले हैं फेयर में, ठीक है। तो मैं आपको सारे नंबर्स दे रहा हूँ, और हर स्टॉल पे ऑन एन एवरेज कितने लोग विजिट करते हैं वो सब मैं बता रहा हूँ, उसमें से कितने बायर्स कन्वर्ट हो जाते हैं, जो आते हैं एज अ कस्टमर, जो विजिट करते हैं आपके स्टॉल को, उसमें से हाउ मेनी पीपल दे गेट कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल कस्टमर्स, ये सब मैंने आपको डेटा दिया है। So in my reasoning, would you question me on this data and numbers, how I achieved it, और how मैं आपको ये नंबर्स कैसे दे पा रहा हूँ, आप उस पर सवाल करेंगे, कि आप इस चीज पे सवाल करेंगे कि इस फेयर को करने की परमिशन गवर्नमेंट देगी कि नहीं। If I am coming to you with this proposal, what would be the most logical question to be asked? कि फेयर के लिए परमिशन गवर्नमेंट देगी कि नहीं करने के लिए, ये आपका बड़ा सवाल होगा, कि आपका सवाल ये होगा कि अगर मैंने स्टॉल लगा भी लिया तो 5,000 मेरे कवर होंगे कि नहीं, एंड आई विल मेक द प्रॉफिट्स और नॉट, दैट विल बी योर बिगर क्वेश्चन। ये आपका सेकेंडरी क्वेश्चन हो जाएगा ना, फेयर परमिशन गवर्नमेंट देगी कि नहीं, दिस इज अ वेरी सेकेंडरी क्वेश्चन। द फर्स्ट थिंग इज दैट यू विल ग्रिल मी ऑन द नंबर्स दैट आई एम गिविंग यू, द लॉजिक एंड रीजनिंग बिहाइंड दोज नंबर्स, जो मैंने आपको बताया कि इतने लोग आएंगे और इतनी सेल हो सकती है, आप उन सब पे मुझे पहले सवाल करेंगे। तो ये वैसे ही है कि ये पास होगा कि नहीं, ये तो बात की बात है। हम कह रहे हैं कि लेट्स अज्यूम द कंडीशन वेयर फेडरल लेजिस्लेशन हैज प्रोहिबिटेड द सेल ऑफ वीडियो गेम्स, इन दैट केस वुड दिस बी ट्रू कंडीशन? उस केस में ये बात सच हो जाएगी क्या कि ये जो पेनफुल रिस्क कंडीशन है अमंग्स एडोलेसेंट्स, ये कम हो जाएगी, राइट? So that should be my bigger question. This will be जो A बोल रहा है that is a secondary level question, ठीक है। वो मेरा अभी close assumption नहीं हो सकता है। जो closest assumption है मेरा, that is most parents would refuse to purchase video games for their adolescent children. This is actually supporting my conclusion. Premises plus assumption leads to strong conclusion, right? This is supporting the conclusion कि ये plan काम कर पाएगा। Clear है? कोई confusion है आप पूछ लीजिए अगर नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि देखिए assumptions फाइंड करना ही सबसे टिपिकल और बहुत डिफिकल्ट टास्क है फॉर मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस इन्वॉल्व्स गुड अमाउंट ऑफ रीजनिंग स्किल्स। आप लॉजिकल रीजनिंग में कितने अच्छे हैं वो यहाँ पे बहुत चेक होता है, तो कई बार इस तरह की एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, तो ये सबके लिए ज्यादा ट्रबल एरिया है, ठीक है। नहीं समझ आ रहा है आप पूछ सकते हैं। 27 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। Abhishek says D could be the answer. So let's read the question number 27. Recent research has indicated that married people are not only happier than unmarried people, but also healthier
The study has been widely reported by media, with most commentators concluding, this is the conclusion, that being married is good for one's health and attitude. This is conclusion. So being married leads to good health and good attitude, right? The conclusion of the media commentators depends on which of the following. So most of you are suggesting option C. And some options, some people are suggesting it D. ठीक है, तो अब वही टेक्निक अपना सकते हैं जो अभी तक हम सीख रहे हैं कि अपोजिट ऑफ योर ऑप्शन शुड वीकन द कंक्लूजन. तो सी और डी दोनों पे मैं ये टेक्निक लगा के देख लेता हूँ. C says married people cannot get depressed. Go, I'll make that married people can get depressed. How it is weakening my argument? Married people can get depressed. कैन नॉट हटा दिया हमने, उसको कैन कर दिया है. अब आप लोग बताइए, जितने लोग सी ऑप्शन सोच रहे हैं. ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सी गलत है अभी. ठीक है, आई जस्ट वुड लाइक टू अंडरस्टैंड आप कहाँ पे देख रहे हैं कि कंक्लूजन वीकन हो रहा है, वो देखना चाह रहा हूँ मैं. सुविक सेज इट इज अटैकिंग द प्रीमिस. बट सुविक, जो प्रीमिस दिया हुआ है वो कंपैरेटिव स्टडी है. कंपैरेटिव स्टडी यानी कि मैरिड वर्सेस अनमैरिड को कंपेयर किया हुआ है. तो उसमें उनका कहना है कि जो मैरिड लोग हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हाई है ऑफ बीइंग हैप्पियर कंपेयर टू अनमैरिड पीपल. हैप्पियर और हेल्दी ज्यादा रहेंगे कंपेयर टू अनमैरिड पीपल. इसको ऐसा समझ लो कि कोई हैप्पीनेस या हेल्थ का कोशेंट होता है. सपोज इट्स अ 10 कोशेंट, राइट? So married people will score 7 on that versus unmarried people will score probably 5. ठीक है, तो ये कंपैरेटिव स्टडी है कि जब मैरिड को अनमैरिड ग्रुप से कंपेयर किया गया है तो मैरिड में ज्यादा लोग उन्हें हेल्दी मिले और हैप्पी मिले कंपेयर टू अनमैरिड पीपल. इसका मतलब ये नहीं है कि सारे मैरिड लोग जो हैं सब हैप्पी और हेल्दी हैं. ये गलत एनालिसिस है, राइट स्वप्निल? दैट इज टू एक्सट्रीम. मैरिड पीपल कैन नॉट गेट डिप्रेस्ड इज सेइंग, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ने कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला है, एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं बोला है हर्षवर्धन, राइट? ठीक है, उन्होंने हमेशा क्या कहा है कि कंपेयर टू अनमैरिड these people are better. So if unmarried people are scoring 5 out of 10, these people will score 7 or 8, but they are not full 10. ठीक है, ये सारे 10 नहीं है. आप लोग अज्यूम कर रहे हो कि ये 10 है. ठीक है, तो मैरिड पीपल कैन नॉट गेट डिप्रेस्ड कैन नॉट वीकन योर कंक्लूजन. क्लियर है ये बात? किसी को नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं मुझसे. आर्ग्यूमेंट ने कंपैरेटिव स्टडी दी है, कहीं पे भी उन्होंने नहीं कहा है कि मैरिड पीपल हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा हेल्दी रहते हैं. कंपेयर टू अनमैरिड पीपल दे आर डूइंग बेटर इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हेल्थ. दैट इज ट्रू. मिहिर, इस तरीके से जरूरी नहीं है वैसे मिहिर कि हर क्वेश्चन में आपकी रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो कॉजल की, बट इस क्वेश्चन में हो रही है. Being married becomes the cause, Mihir. The effect of that is coming as good health and happiness compared to unmarried people. That you will feel better health, you will be more happy, but compared to a group which is unmarried people group, right? एब्सोल्यूट में मत देखना कि आप टोटलिटी में ही गुड हैं और हैप्पी हैं हमेशा के लिए, वैसा नहीं बोल रहा है ये कहीं पे. ठीक है, शेखर एंड सुकृति आर सजेस्टिंग ऑप्शन बी. Single person with depression or health problems are just as likely to get married as other single people. D sahi hai answer, Shikhar and Sukriti. How did you guys come to that? How it is weakening the argument? The opposite of that. If I say that single people with depression or health problems are not as likely to get married as other single people, how that is damaging the conclusion of this argument? आपके आंसर सही है सुकृति एंड शिखर. जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड. शिखर says being married is good for happiness and health.
ये तो आर्ग्यूमेंट बोल ही रहा है शिखर, मैं कह रहा हूँ कि बस जो डी है वो कैसे इस बात को का अजम्पशन क्रिएट हो सकता है। ये तो कंक्लूजन है जो आपने लिखा अभी। बीइंग हैप्पी एंड हेल्दी मेक्स अ पर्सन मोर लाइकली टू गेट मैरिड, गुड स्वप्न। If this comes out, that person who actually feel happy and healthy, they tend to get married more. If this comes out, तो ये वैसे ही एनालॉजी हो गई कि जो लोग फिट एंड हेल्दी होते हैं वो इस तरह के ऑफिसेस को ज्वाइन करते हैं जहाँ जिम फैसिलिटी है। ये बात अगर पता चल जाए तो झूठा हो गया ना इनका कंक्लूजन। अगर कोई हेल्दी और हैप्पी है अपनी लाइफ में इसलिए वो शादी करना चाहता है, ये बात अगर पता चल जाए तो शादी का कोई लेना देना नहीं है किसी को खुश बनाने में या हेल्दी बनाने में। इट्स अदर वे राउंड। हमने क्या सीखा है, जब कॉजल रिलेशनशिप होगी तो उसमें या तो सी जैसा फैक्टर नहीं आएगा, राइट, सी इज नॉट अ फैक्टर। एक तो हमने ये सीखा है, और ये रिलेशनशिप्स रिवर्स नहीं होंगी, दे विल नॉट बी रिवर्स, ये भी हमने सीखा है। तो हम यहाँ पे यही कर रहे हैं, जो ये ऑप्शन डी है इसको मैं देखूं और इसका अगर मैं बना दूं, सिंगल पीपल विद डिप्रेशन और हेल्थ प्रॉब्लम्स आर नॉट एज लाइकली टू गेट मैरिड एज अदर सिंगल पीपल। दिस अगर ऐसा है तो ये ऐसा हो गई बात कि सिंगल पीपल जिनको डिप्रेशन और हेल्थ है, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, डिप्रेशन प्लस हेल्थ, इनकी जो शादी करने की प्रोबेबिलिटी है वो 30% है, ठीक है। और जो अदर सिंगल लोग हैं, जो हैप्पी वाला सिंगल ग्रुप है, ये डी प्लस एच जिनके साथ प्रॉब्लम्स हैं वो लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। नॉट डी प्लस एच वाला जो सिंगल ग्रुप है, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मैरिड इज 60%, ठीक है। मैंने इसका अपोजिट क्रिएट कर दिया यहाँ पे, आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये वीकेंड कर रहा है कि नहीं। सिंगल पीपल विद डिप्रेशन और हेल्थ प्रॉब्लम्स आर नॉट एज लाइकली टू गेट मैरिड एज अदर सिंगल पीपल। तो सिंगल विद डिप्रेशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मैरिड 30% है, ठीक है। सिंगल विद नॉट डिप्रेशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स की 60% है। दैट मीन्स ये तो ये बता रहा है कि जिन लोगों में डिप्रेशन और हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होती है वो ज्यादा शादी करने की प्रोबेबिलिटी पे हाई होते हैं। तो दिस स्टडी इज रॉन्ग इन दैट केस। हाँ, इस स्टडी को सही होने के लिए Aparna, can you make that suggestion in the comment box? Aparna is asking one question or making a suggestion. So I just want everybody to read that. People were unhealthy and less happy before marriage. ये स्टडी अगर आ जाए पढ़ना तो ये कंक्लूजन और स्ट्रांग हो सकता है कि जिन मैरिड लोगों को स्टडी किया था वो मैरिड लोग अपनी शादी के पहले अनहेल्दी और हैप्पी थे। अगर ये पता चल जाता है पढ़ना तो भी वो राइट अजम्पशन है, लेकिन अब वैसा कोई ऑप्शन मेरे ख्याल से यहाँ दिया नहीं है, ठीक है। आप बाकी कोई भी ऑप्शंस पढ़ेंगे तो उसमें ये बात दी नहीं है। Prakhar, if we negate option A, the longer people are married, they'll be less happy and healthy. Because see, what has happened is Prakhar that they did not take time into consideration when they said that marriage होना जरूरी है। उन्होंने कहीं भी टाइम को नहीं लिखा कि ज्यादा टाइम मैरिज हुई होगी तो ही आप ज्यादा खुश रहोगे या ज्यादा हेल्दी रहोगे। तो व्हेन दे हैव नॉट टेकन टाइम इनटू कंसिडरेशन, हम उसको यूज करके कैसे आर्ग्यूमेंट को वीकन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि द लॉन्गर पीपल आर मैरिड द हैप्पियर एंड हेल्थियर दे विल बिकम। लॉन्गर की बात ही नहीं हुई है कहीं पर, ठीक है। ऊपर से उन्होंने कहा है कि दो ग्रुप्स को स्टडी किया जिसमें एक ग्रुप मैरिड था और एक अनमैरिड था, तो मैरिड वाले ग्रुप के लोग ज्यादा हेल्दी और हैप्पी मिले हैं। हाँ, कंक्लूजन इज बीइंग मैरिड, बट बीइंग मैरिड फॉर हाउ लॉन्ग इज नॉट गिवन प्रकार। टाइम कंसिडरेशन में नहीं दिया है, सिर्फ लिखा है शादी होना जरूरी है। शादी 5 साल की भी हो सकती है, 10 साल की या 1 साल की भी। उनका कहना है जिनकी भी शादी हुई है वो लोग खुश और हेल्दी पाए गए कंपेयर टू अनमैरिड पीपल, राइट। सो लॉन्गर पीपल आर मैरिड द हैप्पियर एंड हेल्दियर दे बिकम। इस काइंड ऑफ थोड़ा सा फार फेचड अजम्पशन हो जाएगा पता, क्योंकि टाइम इन्होंने कहीं भी नहीं लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए आप लोग।
So some of you are suggesting D and some of you are saying option C. So country X imposes heavy tariffs on imported manufactured goods. Company Y is determined that it could increase its profit in the long term by opening factory in country X to manufacture goods that is currently produced in its home country for sale in country X. For company's determination. So company Y का प्लान ये है कि टैरिफ बढ़ गए कंपनी कंट्री X में. So कंपनी Y का प्लान ये है कि कंट्री X में ही हम अपने अगर फैक्ट्री डाल देते हैं तो ये इंपोर्ट ड्यूटी से हम बच जाएंगे, राइट? इसका क्या एजम्पशन हो सकता है? अब सी बोल रहे हैं कुछ लोग, डी. हम दोनों के ही रिवर्स ऑप्शंस क्रिएट करके देख लेते हैं. A sustainable market for companies Y goods currently exists in country X. Let's create reverse of it. A sustainable market for company Y's good doesn't exist in country X, right? If it doesn't exist, let me see if it is weakening the conclusion in any way. The conclusion was saying that it could increase its profit in the long term. They are saying in the long term. अगर कोई चीज लॉन्ग टर्म तक होनी है तो एक सस्टेनेबल मार्केट का होना जरूरी है. सस्टेनेबल मार्केट इज द वन व्हिच विल एग्जिस्ट इन द लॉन्ग ड्यूरेशन आल्सो. एनीथिंग व्हिच इज सस्टेनेबल विल गो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. सो अगर सस्टेनेबल मार्केट होगा वाई के प्रोडक्ट्स का, आज तो एग्जिस्ट करता है, पर क्या फ्यूचर में भी मार्केट होगा, इस चीज की श्योरिटी अगर मिल जाती है तो ये assumption सही है हमारा. तो सी could be the right answer. Let's talk about option D. Company Y home country does not impose tariffs on the imported goods. How does it matter? कंपनी Y की कंट्री की पॉलिसीज क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम अपनी जो कंपनी Y है वो कंट्री X की पॉलिसी से परेशान होकर ये काम कर रही है, राइट? तो कंट्री X की जो पॉलिसी है उस पर अगर कोई सवाल हो रहा है तो हम बात कर सकते हैं कंपनी Y की खुद की इम्पोज टैरिफ्स और इम्पोर्टेड गुड पॉलिसी क्या है. दिस इज नॉट रेलिवेंट टू योर आर्ग्यूमेंट, राइट? हम किसी को सामान बेच रहे हैं तो उसकी कंट्री कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो वहां पे इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा रही है, राइट? हाँ, प्रॉब्लम तब हो सकती है जब हमारे यहाँ एक्सपोर्ट्स में कोई ड्यूटी बढ़ा दे, लेकिन यहाँ पे वो बात ही नहीं हो रही है. यहाँ तो इम्पोर्टेड गुड्स की बात हो रही है, यानी जो कंपनी वाई इम्पोर्ट करेगी अपनी कंट्री में उससे कोई प्रॉब्लम हो रही है. दैट इज नॉट रेलिवेंट टू आवर डिस्कशन, नॉट रेलिवेंट टू आवर कंक्लूजन, राइट? कंपनी वाई इज एक्सपोर्टिंग समथिंग टू कंट्री एक्स, दैट इज द होल इशू. उस पर वो लोग देख रहे हैं कि अगर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही डाल दें वहां पे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हम ये इंपोर्ट ड्यूटी से बच जाएंगे एंड प्रॉफिट ज्यादा रहेगा हमारा, राइट? बट उसके लिए एक सस्टेनेबल मार्केट का होना जरूरी है. तो सी इज करेक्ट. दिशा इज सेइंग ई कुड बी द आंसर. Labor cost in country X are lower than those in company Y's home country. Let's create opposite of this, Dasha, to see if it can weaken my reasoning. Labor cost in country X is higher or equivalent. ये हमने opposite create कर दिया. Is higher or equivalent than those in company Y's home country. ये कैसे weaken कर देगा? अगर इसमें एक बात और ऐड हो जाए दिशा तो ये सही हो सकता है कि वो लोअर है और वो इतनी लोअर है कि Swapnil is saying it will strengthen the idea. The opposite will strengthen the idea. मैं तो चलो इसका अपोजिट क्रिएट करके बताता हूँ आपको कि ये वीकेंड कर पाएगा कि नहीं. कि जो लेबर कॉस्ट है वो ज्यादा है मान लेते हैं हम, पर क्या वो मेरी इंपोर्ट ड्यूटी से ज्यादा है? फॉर एग्जांपल इंपोर्ट ड्यूटी के बढ़ने से इनके जो इंपोर्ट ड्यूटीज हैं वो इतनी बढ़ गई हैं कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो 2x पे पहुंच गई है. जो x में बेचते थे वो 2x पे पहुंच गया है, ठीक है? हैवी टैरिफ्स आ गए इंपोर्टेड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे, सो दे आर इम्पोजिंग डबल टैरिफ्स बेसिकली. सो 2x पे पहुंच गया. अब आप कह रहे हो कि जो लेबर की कॉस्ट है वो लेबर की कॉस्ट अगर बढ़ी हुई भी है, बात सही है स्वप्निल, लेस लेबर मोर प्रॉफिट की बात सही होती है, लेकिन ड्यूटीज के कंपैरिजन में कितना है वो भी हमें देखना है. मैं तो आपको इसका अपोजिट क्रिएट कर रहा हूँ ना, कि अपोजिट में क्रिएट कर देता हूँ कि लेबर कॉस्ट इन कंट्री एक्स नहीं है लोअर, ठीक है? जो कंपनी वाई थी वहां पे एक लेबर को उन्हें देना पड़ता था 20,000 वेज अ मंथ, राइट? सॉरी कंपनी वाई है वो.
और कंट्री एक्स में यही वेजेस उन्हें देनी पड़ रही है 25,000 अमाउंट। ठीक है, मैंने इसका रिवर्स बना दिया है। अब मुझे ये फैक्टर करना है कि ये जो 25,000 हमें ज्यादा देना पड़ेगा, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे लेबर्स को, उसके बाद जो वो इम्पोर्ट ड्यूटीज वाली बात है कि वो इम्पोर्ट ड्यूटी से मैं बच रहा हूँ, तो ये जो प्राइस बढ़ी हुई भी है क्या ये उसमें कवर हो जाएगी मेरी? फॉर एग्जाम्पल जो इम्पोर्ट ड्यूटीज के बढ़ने से मुझे नुकसान हो रहा था वो 10 लाख था। ठीक है, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि इम्पोर्ट ड्यूटी के बढ़ने से 10 लाख एडिशनल कॉस्ट जा रही है हम लोग प्रोडक्ट बेचने में। ठीक है, लेबर जो एक्स्ट्रा लेबर यहाँ की एक्सपेंसिव है मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो लेबर में अब मुझे एक्स्ट्रा 5 लाख ही देना पड़ता है। स्टिल आई एम सेविंग 5 लाख रुपीज। ठीक है, तो अगर ये बात को मैं उल्टा भी कर दूं कि लेबर कॉस्ट इन कंट्री एक्स इज नॉट लोअर देन दोज इन कंपनी वाइज होम कंट्री, still there could be a valid argument in which if I am saving my tariff duties, if I am saving money from tariff duties by establishing my manufacturing unit in country X, and it is still saving me money just like the example which I have quoted here, उस तरीके से अगर मेरा फिर भी पैसा सेव हो रहा है तो ठीक है ना, इट मेक सेंस टू पुट फैक्ट्री ओवर देयर। तो द अपोजिट ऑफ दिस इज नॉट वीकनिंग माय आर्गुमेंट। समझ पा रहे हैं ना आप लोग कि अगर लेबर कॉस्ट चीप है भी नहीं, ज्यादा भी है, तो भी शायद मैं पैसे बचा सकता हूँ क्योंकि टैरिफ बहुत ज्यादा होंगे। टैरिफ की जो कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा हो रही है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं, विच इज सिमिलर टू व्हाट वी वर डूइंग इन द प्रीवियस एक्सरसाइज, इज जस्ट दैट अभी तक हम assumptions को फाइंड करते थे। ठीक है, हमारा टास्क क्या था? फाइंडिंग assumptions. Now what we have to do is that we have to attack the assumptions. ठीक है, दोनों का आप डिफरेंस समझिएगा। अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें हमें assumptions आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया था, राइट? और हम उसकी एक स्ट्रेटेजी अपना रहे थे विच इज नेगेशन स्ट्रेटेजी, जिसमें हम किसी ऑप्शन का अपोजिट क्रिएट करते थे टू सी इफ इट इज वीकनिंग दैट आर्ग्यूमेंट और नॉट। अब आपको स्ट्रेट अवे फाइंड करना है वो ऑप्शन बिना कुछ अपोजिट क्रिएट किए जो एक्चुअली आपके कंक्लूजन को वीकन कर रहा हो, जो आपके कंक्लूजन को डैमेज कर रहा है। वी हैव टू फाइंड दैट ऑप्शन डायरेक्टली। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वीकन द कंक्लूजन अबोव, विच मीन्स बेसिकली अटैकिंग द assumption। ठीक है, जैसे ये जो क्वेश्चंस हमने किए थे इसमें इफ यू रिमेंबर, एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ मैं। जो मोल्ड वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे, ये स्मोकिंग वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, राइट? स्मोकिंग में अगर ये जो एग्जाम्पल था कि एंजाइटी एंड नर्वसनेस मेक इंडिविजुअल्स मोर लाइकली टू स्टार्ट स्मोकिंग, हमें इस तरह का ऑप्शन डायरेक्टली फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि अब हमसे वीकेंड करने का पूछा हुआ है, तो डू नॉट वाला वर्जन अब आपको बनाने की जरूरत नहीं है, नॉट और डू नॉट वाला डायरेक्टली आप रीड करेंगे ऑप्शंस को एंड यू विल सी विच ऑफ देम इज अटैकिंग योर कंक्लूजन डायरेक्टली। कुछ इनडायरेक्ट और निगेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वहां पे आपको ऐसे ही ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है जिसमें लिखा हो एंजाइटी एंड नर्वसनेस मेक इंडिविजुअल्स मोर लाइकली टू स्टार्ट स्मोकिंग, दैट कैन डैमेज द रीजनिंग ऑफ दिस आर्गुमेंट। So let's come to weakening questions now. Let's look at the first question. Read this one.
ठीक है, पढ़ लिया क्वेश्चन आप लोगों ने? सो assuming that all stadiums during the season were filled to capacity, which of the following, if true, most undermines the argument above? Now, in this particular task, we have to weaken their conclusion. The conclusion here is saying that कि crowd जितना ज़्यादा होता है उतने ज़्यादा home run पड़ते हैं, ये बताने की कोशिश करिए, right? That in stadiums जहाँ पे 20,000 or fewer people थे, the team averaged 1 home run per game. जहाँ पे crowd 20,000 से 40,000 का आया था, team averaged 2 home runs per game. And in stadiums that seat 40,000 or more people, the team averaged 3 home runs per game, right? So they are trying to create a correlation between more number of people present in the stadium can lead to better scores, better home runs, sorry. Obviously, the excitement of playing in front of large crowds motivated the team to hit more runs. We have to weaken this relationship. What relationship? This is also a causal question only. आप लोग ये छोटी सी रीजनिंग अगर बना के लिखेंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। ये जो हम लोग बनाते हैं ना, छोटा सा एक शॉर्टर वर्जन ऑफ दैट आर्ग्यूमेंट वी आर क्रिएटिंग, दैट मोर क्राउड लीड्स टू मोर होम रन्स। इफ यू क्रिएट दैट, थिंग्स विल बिकम इजी फॉर यू। सो मोस्ट ऑफ यू आर सजेस्टिंग, इसमें काफी सारे ऑप्शन है, किसी ने बी बोला है, सी, एंड पीपल आर आल्सो सेइंग डी। So B, C, D, they look like popular choices, and then Aparna, Satyaki are also suggesting A. So almost A, B, C, D सारे options आ रहे हैं। ठीक है, हमें आप समझ गए ना किस रीजनिंग को हिट करना है, कि मोर क्राउड डजंट मीन मोर होम रन्स। हमको इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट करने की कोशिश करना है, या हमें बताना है कि देखिए A लीडिंग टू B को वीकेंड करने वाली चीज क्या हो सकती है, अगर C जैसा फैक्टर पता चल जाए जो B की तरफ जा रहा है। ठीक है, कि वो जैसे जो बोला था कि इन हाउस जिम फैसिलिटीज ऑफिस में है, इस कारण से एम्प्लॉयज फिट एंड हेल्दी हैं। अब उसमें पता चल जाए कि ये वही एम्प्लॉयज थे जिनको स्टडी किया गया है, जो यूजुअली अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं, प्रोटीन रिच फूड लेते हैं, कार्ब्स अवॉइड करते हैं। इस तरह का क्राउड स्टडी किया था उन लोगों ने। अगर ऐसा पता चल जाता है तो वो सी वाली बात हो गई, दैट सी वाज लीडिंग टू बी, आउटकम बी। ठीक है, तो वैसे ही हम कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं जो इस कोरिलेशन को वीकेंड करता है। सो सारे ही ऑप्शंस देखते हैं, बिकॉज यू गाइस हैव सजेस्टेड ऑलमोस्ट ऑल ऑप्शंस। ए सेज द टीम्स लीडिंग होम रन हिटर hit more home runs in mid-sized stadiums than in large stadiums. So this is only about one team player doing that. आप लोग हमेशा कोई भी एक्सेप्शंस वाली बात होगी उसको अवॉइड करना। जब भी एक्सेप्शंस या सिर्फ एक की बात होती है ना, फॉर एग्जांपल आपको किसी ने आके बताया कि कोई यूनिवर्सिटी है जिस पे यूजुअली 325 का जीआरई चाहिए और 8 सीजीपीए चाहिए। ठीक है, टू गेट एडमिटेड इनटू दैट यूनिवर्सिटी, दिस इज द स्ट्रेट अवे क्राइटेरिया। Now you are able to find a student who was able to get into that university with a 305 score on a lesser CGPA as well. So based on this one guy, can we conclude everything? No. This could be the outlier, the exception. एक को मिला है इसका मतलब सबको मिला है, ये करना गलत हो जाएगा, राइट? तो एक टीम का जो होम रन हिटर था उसने मिड साइज स्टेडियम्स में ज्यादा रन बनाए कंपेयर टू लार्ज स्टेडियम। इसके बेसिस पे हम सारे होम रन जो हिट कर रहे हैं उन लोगों को कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। दिस कुड बी स्पेशल केस, दिस कुड बी एन आउटलायर, एन एक्सेप्शन, राइट? वी हैव टू फाइंड अ स्ट्रॉन्ग रीजनिंग where this thing, this correlation can be destroyed. The correlation is more crowd people, more number of people leads to better home runs. The fans in the largest stadium often cheered against the team. इसमें कहीं भी नहीं कहा है कि चीयर अगेंस्ट किया है या चीयर फॉर किया है, ये कहीं पे भी हमें नहीं पता है। सिर्फ कहा है कि लोगों के ज्यादा होने से एक्साइटमेंट ऑफ प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज क्राउड्स मोटिवेटेड। चीयर फॉर किया, चीयर अगेंस्ट किया, इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, तो ये भी मेरे आर्ग्यूमेंट को कहीं से कहीं वीकन नहीं कर सकता है। ठीक है, सी और डी देख लेते हैं। द टीम एवरेज ओनली 2 होम रन्स पर गेम व्हेन प्लेइंग इन द लीग्स लार्जेस्ट स्टेडियम, व्हिच इज फाइन। In order to create sitting for additional fans, the outfield walls in the larger stadiums were constructed closer to home base. This is very appropriately giving you that C factor, which is leading to B. आप क्या समझ रहे थे कि क्राउड के ज्यादा होने से होम रन ज्यादा हो रहे हैं, ये रिलेशनशिप है, राइट?
अब अगर आपको ये बात पता चलती है कि बड़ा क्राउड को एकोमोडेट करने के लिए जो स्टेडियम्स थे उसमें उन्होंने बाउंड्रीज को क्लोजर कर दिया, आउटफील्ड जो वॉल्स थी इन द लार्जर स्टेडियम्स वर कंस्ट्रक्टेड क्लोजर टू होम बेस, सो दैट मींस बाउंड्रीज आर क्लोजर व्हिच इज लीडिंग टू मोर होम रन्स. ठीक है, so it's not because of the excitement of playing in front of large crowd, it is because the boundaries are closer because of which home runs ज्यादा आ रहे हैं. ठीक है, तो D is appropriately contradicting this statement, it is weakening this conclusion. Clear है? कोई और ऑप्शन लगता है तो आप बता सकते हैं. ये वैसे ही है कि A से B हो रहा था, आपने C जैसी चीज पता कर ली. ठीक है, आपको पता चला सी जैसा भी कोई फैक्टर है जिसके कारण बी हो सकता है, आपने वो पता कर लिया, तो इट कैन वीकन द रीजनिंग in most cases. Ayushi, I'll not say always, but in most cases when causal relationship questions are given, try to either identify C kind of thing which can lead to B, और B के कारण A हो रहा है, ऐसी रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश करने की कोशिश आप कर सकते हो या देख सकते हो. ये दोनों ही केस में आर्ग्यूमेंट वीकन हो सकता है, और इसके अलावा भी कोई और रीजनिंग हो सकती है. अगर ये दोनों ही नहीं दिए हैं आयुषी तो कुछ और भी हो सकता है. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टोटली, बट इन मोस्ट केसेस जब कॉजल रिलेशनशिप क्वेश्चंस होंगे तो इनमें से एक ट्रिक काम कर जाएगी वीकनिंग के. यही हमारे अजम्पशंस होते हैं. मैंने आपको बताया वीकनिंग में आप क्या करते हैं, अजम्पशंस को अटैक करते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ अजम्पशंस को अटैक कर रहे हैं, राइट. या तो सी वाली बात है या फिर बी के कारण ए हो रहा है, ऐसी बात पता चल जाए तो भी वीकन हो सकता है कंक्लूजन. सिक्स थोड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, so again in this question it is saying that Adam is going to spend 4,000 to rent to rent a booth at the town's annual county fair to promote his new sandwich shop. In previous years, the average food booth at the fair served 400 customers. Thus, in order to cover his cost, Adam has calculated that he must sell 400 sandwiches for $10 each. Which of the following statements cast the most doubt on the Adams chances of breaking even at the county fair? ये तो बड़ा मैथमेटिक्स टाइप का भी सवाल है, बहुत इजी होना चाहिए, समझ जाएंगे आप लोग. स्वप्निल तनय कुशाग्रा सजेस्टिंग ऑप्शन बी. ठीक है, उसको वहां पार्टिसिपेट करने की कॉस्ट आ रही है $4,000. ठीक है, और उसने क्या एस्टिमेट किया है कि वहां 400 कस्टमर्स आएंगे एंड उसने 400 सैंडविचेस अगर वो बेच देता है $10 ईच के, तो वो ब्रेक इवन पे पहुंच जाएगा. ठीक है, thus in order to cover his cost, Adam has calculated that he must sell 400 sandwiches for $10 each. Now, which of the following can weaken his plan? बी बड़ा अप्रोप्रिएटली बता रहा है कि उसने सिर्फ क्या फैक्टर किया है, सिर्फ $4,000 जिसको वो रेंट भरेगा अपने बूथ का, सिर्फ उसको उसने कॉस्टिंग में लिया है. If he has excluded the other kinds of costs like raw material cost, labor, then he is making mistake. He'll not be able to reach break even in that case. अगर इन सब पे भी वो कॉस्ट लगा रहा है, रॉ मटेरियल्स की और बाकी चीजों की, तो उनको उसने फैक्टर ही नहीं किया है. So just by making $4,000, he'll not be able to offset his investment, the cost which he is incurring. That is the weakness in his plan.
So B option सही है. एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठाते हैं. Let's pick question number 10 now. Right, so the total number of people who get retired and they go to a different state to get settled, उस proportion में we are seeing तो Sun State का उन्होंने कहा है it has decreased 10% over the past 5 years, and because many local businesses in Sun State cater to retirees, this decline is likely to have noticeably negative economic effect on particularly these businesses. Now, which of the following, if true, can weaken the argument? The argument says that, मैं उसका छोटा फॉर्मेट बना देता हूँ जिससे आप लोग समझ पाएं. So proportion of retirees coming to Sun State, like settling to Sun State, is decreasing. Now, because of that, businesses catering to these people would be impacted. This is the overall argument, right? This is again a cause and effect question, in which the cause is that proportion of retirees coming to Sun State are decreasing. The impact of that is business catering to these people would be impacted. So Tanay is suggesting B, rest Swapnil, Suvik has a confusion between B and D. Pratik, Adi are suggesting E, Naman, Palak and Shikhar are suggesting E. तो ये सारी options हम देख लेते हैं B, D and E. So there are far more local businesses in Sun State that cater to tourists than there are local businesses that cater to retirees. Now the problem with this particular option is it is not weakening my confusion. My confusion is specifically talking about कि कौन से business impacted हो जाएंगे. These businesses. When they say word these businesses are the business, many local business which are catering to retirees. जो retirees के लिए specifically काम करते हैं या उन्हीं का सामान रखते हैं, ऐसे businesses पे ही negative economic impact आएगा. उन्होंने पूरे Sun State के business को नहीं कहा है. In the conclusion, they are not saying that the entire Sun State business is going to get impacted, since many local business are catering to retirees. These people, these businesses are going to get impacted, right? So भले ही अगर टूरिस्ट वाले बिजनेस अच्छा भी करेंगे तो हमें क्या करना है इस बात से. हमारा कंसर्न ये है कि this should not impact the businesses which are catering to retiree. What जो ये ट्रेंड है कि जो proportion है, that proportion has decreased by 10% over the past 5 years. ये proportion अगर घट चुका है तो इसके कारण यहाँ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया इन बिजनेसेस पे, रिटायरीज के बिजनेस पे. ये बात हमें एस्टैब्लिश करनी है, राइट? एंड दिस विल वीकन आवर आर्गुमेंट. इफ वी कैन एस्टैब्लिश दैट डिस्पाइट दिस डिक्रीज इन प्रोपोर्शन देयर विल बी नो नेगेटिव इफेक्ट ऑन दीज बिजनेसेस, सही हो जाएगा हमारा. सो ई, बी,
और डी भी सब लोग बोल रहे हैं, तो देख लेते हैं हम बाकी ऑप्शंस में। बी सेज देयर आर फार, बी तो हमने डिस्कस कर लिया, सॉरी। ई कह रहे हैं ना आप लोग। Sun state has lower property tax than any other state, making the state magnet for retirees. Could be true, but still the proportion जो डिक्लाइन हो चुका है, आप उस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं। जो सन स्टेट में भले ही प्रॉपर्टी टैक्स कम हो गया, जिस कारण से वहाँ पे रिटायरीज आ सकते हैं आने वाले टाइम में, लेकिन जो अभी का ट्रेंड और सिचुएशन है कि पास्ट 5 ईयर से 10% से डिक्रीज होता जा रहा है इनका प्रपोर्शन, इस बात को हम झुटला नहीं रहे हैं। ठीक है, और ये हमें ये भी नहीं बता रहा है कि मेरा कहना है कि डिक्लाइन के बावजूद जो है रिटायरीज को जो बिजनेस केटर करते हैं उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। ई कहता है सम ऑफ यू हैव सजेस्टेड ई, सो लेट्स डिस्कस दैट एज वेल। द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु रिटायर्ड एंड मूव टू अनदर स्टेट फॉर देयर रिटायरमेंट हैज इंक्रीज्ड significantly over the past 5 years. E could be the right answer. All of you who have suggested E, क्या रीजनिंग आप लोगों ने यूज करी है कि अगर टोटल नंबर ऑफ पीपल जो रिटायर होकर दूसरे स्टेट में जाते हैं, अगर ये टोटल नंबर सिग्निफिकेंटली बढ़ चुका है पास्ट 5 years में, राइट स्वप्ना, इट कम्स टू द परसेंटेज प्रॉब्लम, राइट। वी हैव ऑलवेज डिस्कस दिस थिंग। जब हमने परसेंटेजेस पे भी, जब मैंने आपको एक सेशन लिया था, तो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि परसेंटेज के थ्रू आप कोई भी ट्रू पिक्चर नहीं पता कर सकते हैं। 5% ऑफ x could be greater than 25% ऑफ y, राइट। हमें बेस फिगर्स पता होने चाहिए किसी भी चीज के, राइट। अब उन्होंने हमें बताया कि 10% से डिक्रीज हुआ है प्रपोर्शन, ठीक है, वो 10% ऑफ x है, ठीक है, 10% ऑफ x है। अब वो कह रहे हैं कि, आई एम सॉरी, आप उसको ऐसा समझ लीजिए कि पहले 60% ऑफ x था, ये आप अज्यूम कर लीजिए। उनका कहना है ये जो 60% है जो रिटायर होके चले जाते थे सन स्टेट में, ये जो 60% प्रपोर्शन है, ये आज की तारीख में 50% ही रह गया, ठीक है। अब वो ऑफ एक्स नहीं बता रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि वो 50% रह गया, कि पहले 60% ऑफ एक्स जो होते थे वो जाके बस रहे थे सन स्टेट में। अब ये जो 10% का रिडक्शन आया, डिक्रीज बाय 10% ओवर द पास्ट 5 years, वो 60 से 50 हो गया है सन स्टेट जाने वाले का। लेकिन अगर ये 50% इज ऑफ वाई, एंड वाई इज अ फिगर विच इज वे बिगर देन एक्स। जो टोटल नंबर ऑफ रिटायरीज थे 60% के टाइम, वो एक्स है, लेकिन अब जो 50% के बाद जो टोटल नंबर ऑफ रिटायरीज हैं वो वाई है, जो कि बड़ा फिगर है। सो अ 50% ऑफ वाई कैन ऑलवेज बी बिगर देन 60% ऑफ एक्स। हमने यही सीखा है ना परसेंटेज के बारे में। सो अगर टोटल नंबर ऑफ लोग बढ़ जाते हैं जो रिटायर हो रहे हैं, तो पोर्शन कम होने के बाद भी, बेसिकली इसको ऐसा समझो कि, बहुत बड़ा आपको फनी और छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। कि आपके लिए कोई केक लेकर आ रहा था, और केक में पहले आपको बोला था कि 25% ही आपको दिया जाएगा, ठीक है। दैट टाइम जो केक लाया जा रहा था वो 10 LBS का केक था, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि कोई केक लेकर आएंगे हम लोग, और उसमें अब जो आपको मिलेगा दैट इज रिड्यूस्ड, अब वो 15% ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो केक का आपका टोटल वेट ही बढ़ा देते हैं, हम 30 LBS कर देते हैं, तो क्या वो फिगर बड़ा नहीं हो जाएगा आपका? बिल्कुल बड़ा हो जाएगा। 25% of 10 LBS will be lesser amount, lesser cake portion which you are getting compared to 15% of the 30 LBS. So it's a similar analogy. ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ जो रिटायरीज हैं वही अगर बढ़ गए, तो इवन जो रिडक्शन इन परसेंटेज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद भी हो सकता है नंबर ऑफ पीपल हु आर रिटायरिंग एंड कमिंग टू सम स्टेट, दे विल रिमेन सेम despite decrease in percentage because the base figure has increased.
ठीक है, E is correct answer. So total number of people जो retire होके move हो रहे हैं another state में, if that has increased significantly over the past 5 years, this will not impact. This reduction in percentage will not impact to the businesses which are catering to retirees. Clear है ये बात? एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम वीकनिंग पे. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. ठीक है, अब इनका कहना है ईएसआई टाइप की जो पॉलिसी है, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस दैट कैन डिक्रीज वर्कर एब्सेंटिज्म. राइट, नाउ वी हैव टू वीकन दिस कोरिलेशन. द कोरिलेशन इज, इसको छोटा फॉर्मेट में लिख लेते हैं, ईएसआई के कारण ठीक है, ईएसआई के आ जाने से वर्कर का जो एब्सेंट होना है दैट इज रिड्यूस्ड. वी हैव टू डिस्ट्रॉय दिस कोरिलेशन, वी हैव टू वीकन दिस कोरिलेशन. तो ये कॉजल रिलेशनशिप है. कॉजल रिलेशनशिप में मैंने आपको दो टेक्निक्स बताई हैं, राइट? या तो सी जैसी कोई चीज है विच कैन रिड्यूस दी वर्कर एब्सेंटिज्म, ऐसा हम पता कर लें, या ये रिलेशनशिप रिवर्स्ड है, ये पता कर लें हम. स्वप्निल सेज डी, कुशाग्र सिंह डी, गौरी सेज डी, Mihir, Jasmine are also suggesting D. Let's look at the option D. Many firms in the manufacturing sector have improved workplace safety and decreased the occurrence of on-the-job injuries in the last 5 years. And most of these companies introduced ESI at the same time. So this is very similar to C factor, right? कि आप समझ रहे थे कि ESI के कारण हो रहा है, but there is something additional going on जिसके कारण से एब्सेंटिज्म रिड्यूस हो रही है. दैट इज आपने वर्कप्लेस की सेफ्टी अच्छी कर दी है और उस कारण से इंजरी कम हो रही है, लोगों को इंजरी कम हो रही है, तो एब्सेंटिज्म कम हो रही है आपकी. तो इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ ईएसआई, इट इज बिकॉज ऑफ दैट सेफ्टी मेजर्स व्हिच यू हैव इंप्रूव्ड इन वर्कप्लेस, राइट? कोई और ऑप्शन पे अगर कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, टाइम बचा है तो 13 क्वेश्चन पे आ जाते हैं. ठीक है, so here the argument is suggesting that studies have shown that an automobile that runs on blend of ethanol and gasoline, this kind of blend, gets better mileage than an otherwise similar car equipped with gasoline engine
many American legislators have concluded that an increase in tax incentives for ethanol production would lessen our dependence on foreign oil. ठीक है, based on the study कि अगर हम टैक्स इंसेंटिव्स बढ़ा दें इथेनॉल में तो इथेनॉल का यूसेज बढ़ जाएगा, और इथेनॉल ज्यादा बढ़ा तो गैसोलीन पे या ऑयल पे जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी. ठीक है, सो टैक्स इंसेंटिव्स वुड लीड टू डिक्रीज इन डिपेंडेंस ऑन फॉरेन ऑयल. This is the reasoning we are trying to create. We have to establish a reasoning which is weakening it. We have to find the option which is contradicting this reasoning. Prakash says it should be C. Jasmine, Divya, Naman, Ritik, Gauri, Aparna. Disha, all of you suggesting A. ठीक है, सो A, C दो ऑप्शंस हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं. It takes 1.5 gallons of oil to produce 1 gallon of ethanol. अब इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए अगर 1.5 गैलन ऑयल लगता है, इथेनॉल बनाने में ही अगर इतना गैलन लगता है, तो क्या हमारा डिपेंडेंस कम होगा इथेनॉल बनाने से? अगर इथेनॉल पे टैक्स इंसेंटिव्स आ जाते हैं, लेट्स अज्यूम दैट more production of ethanol would take place. More production of ethanol would also result in more consumption of oil to produce that ethanol, right? So in this way, you're not actually decreasing the dependency. A is casting doubt on this plan. ठीक है, इसके अलावा ऑप्शंस आप लोग जो कह रहे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. द सी, it costs thousands of dollars to retrofit an automobile to run on ethanol fuel mix. अब इसमें आकाश ये प्रॉब्लम है कि भले ही थाउजेंड्स ऑफ डॉलर लगते हों, लेकिन इससे अगर डिपेंडेंसी खत्म होती है तो उनका मुद्दा वो है कि डिपेंडेंसी खत्म करना है. इज द आर्ग्यूमेंट. इट्स नॉट अबाउट प्राइस, इट्स अबाउट डिक्रीजिंग द डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन ऑयल. दैट इज द होल पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट. ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट टेक दिस इनटू कंसीडरेशन. कॉस्टिंग से हम क्या करें? ठीक है, इसको इस तरीके से समझो कि मैं कह रहा हूं आपको कि स्मोकिंग किसी ने इस तरह का एक स्टडी कंडक्ट करवा के आर्ग्यूमेंट दे दिया. ठीक है, आई एम नॉट क्लेमिंग दिस. ठीक है, ये ऐसा कोई स्टडी कंडक्ट करवाता है और वो बता रहा है कि स्मोकिंग लीड्स टू बेटर फोकस. ये पहले बहुत सारी सिगरेट कंपनीज इन यूएस व्हेन दे वर लॉन्च्ड, मार्लबोरो एंड अदर कंपनीज, दे यूज्ड टू कम अप विद दीस डेटा एंड आइडियाज इन दोस डेज दैट स्मोकिंग लीड्स टू बेटर फोकस. ठीक है, उस टाइम पे ऐसी एड कैंपेन्स और चीजें बनाई जाती थी ये बताने के लिए. ये कोई मेडिकली प्रूवन चीज नहीं थी, पर वो लोग प्रमोट करते थे कि स्मोकिंग लीड्स टू बेटर फोकस. अब इस पे अगर कोई बोले कि स्मोक करना से प्राइस या आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं, will not weaken the reasoning, right? We have to find an answer which says that smoking doesn't lead to better focus. हमको उसी reasoning पे अटैक करना है. कोई अगर प्राइस की बात करता है, कोई ये भी कहता है कि स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर, दैट अगेन कैन नॉट डिस्ट्रॉय दिस रीजनिंग. हमें रीजनिंग क्या डिस्ट्रॉय करनी है? हमें यही साबित करना है कि स्मोकिंग से बेटर फोकस नहीं होता, ये बताना. उसके कारण जो भी प्रॉब्लम्स और होती हैं उससे इसकी रीजनिंग वीकेंड नहीं होने वाली. ठीक है, कि इससे आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, इट लीड्स टू कैंसर, कैन नॉट डिस्ट्रॉय द रीजनिंग दैट स्मोकिंग लीड्स टू बेटर फोकस. सो यू ऑलवेज हैव टू स्टिक टू द कंक्लूजन पार्ट. द कंक्लूजन पार्ट इज अबाउट डिपेंडेंट जो हैं हम बाहर के ऑयल पे, वो लेस हो जाएगा. ठीक है, लेसन आवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन ऑयल. दैट्स व्हाई वी आर नॉट फैक्टरिंग कॉस्ट ओवर हियर. आयुषी सेज इलेक्ट्रिक कार्स कैन डिक्रीज द डिपेंडेंसी. वो भी बाद में मुद्दा आएगा इलेक्ट्रिक कार्स का. अभी वो कह रहे हैं आयुषी कि अगर हम इस तरह का फ्यूल यूज कर लें इंजन में. किस तरह का फ्यूल? इथेनॉल विथ गैसोलीन मिक्स, जिसमें 85% इथेनॉल है और गैसोलीन ओनली 15% है. उनका कहना है कि ये अगर यूज कर लिया तो ऑयल डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो जाएगी. ये उनका प्लान है. ठीक है, दिस इज नॉट ओनली फॉर इलेक्ट्रिक कार्स, फॉर अदर कार्स एज वेल. ठीक है, जो नॉर्मल कार्स हैं जिसमें इस तरह का फ्यूल हम यूज कर सकते हैं, उससे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी फॉरेन ऑयल. ये तो आप एक एक्स्ट्रा सजेशन दे रहे हो आयुषी कि इलेक्ट्रिक कार्स अगर ले आए तो शायद और डिपेंडेंसी डिक्रीज हो सकती है.
बट दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये कहीं कवर ही नहीं किया है, ठीक है। और हमें वीकेंड करना है बेसिकली, हमें उसको स्ट्रेंथन नहीं करना है और सजेशंस देके। सो वीकनिंग का एक ही स्टेटमेंट है विच इज ए, विच इज टेलिंग यू दैट इवन टू प्रोड्यूस दैट 85% ऑफ इथेनॉल वी आर गोइंग टू कंज्यूम लॉट ऑफ ऑयल। उसको प्रोड्यूस करने के लिए इतना ऑयल लग जाएगा, 1 गैलन के लिए अगर 1.5 गैलन ऑयल लग रहा है, दैट मीन्स हमारी डिपेंडेंस जो है वो बढ़ जाएगी इनफैक्ट, कम होने की जगह। तो ए इज प्रॉपरली वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट, ठीक है। So I hope these 2 sessions were helpful in building up good reasoning skills for you guys, the assumptions and the weakening class which we have done. I'll be taking one more session in which I'll try to cover the strengthen part as well. So in that way आपका ये reasoning वाले जो statements आते हैं, ये आपके काफ़ी कुछ आप tackle कर पाएंगे। और आपके जो comprehension के questions हैं उसमें भी कई बार assumptions आपसे बहुत पूछा जाता है, वहाँ भी आपको help मिलेगी if you have understood the logic behind it। अगर आपको समझ आ गया कि कैसे प्रीमिसेस, assumption और कंक्लूजन को लीड करते हैं, assumptions को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, वो अगर समझ आ गया है तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। सो आई विल सी यू गाइस डे आफ्टर टुमारो सेम टाइम, विल बी मीटिंग अगेन। नेक्स्ट टाइम आपका 1 आवर सेशन ही रहेगा जो रेगुलर रहता है क्लासेस में, एंड विल बी कंटिन्यूइंग विद द स्ट्रेंथनिंग क्वेश्चन। आज जैसे हमने वीकेंड किए हैं, इसी तरीके से स्ट्रेंथनिंग द कंक्लूजन क्वेश्चंस आते हैं, विल बी फोकसिंग ऑन दैट इन द नेक्स्ट सेशन। Thank you so much, guys. I'll see you day after tomorrow. Thank you, everyone.